न्यूज टुडे इंडिया में आपका स्वागत है। मैं फैजान अशरफ इस वक्त मौजूद है ग्वालपोखर के वीडियो ऑफिस के ग्राउंड में, जहां पे आज तृणमूल कांग्रेस की ओर से ग्वालपोखर तृणमूल कांग्रेस कमेटी की तरफ से विजय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें काफी संख्या में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता, लीडर और जो है सीनियर के साथ ही साथ काफी संख्या में तृणमूल कांग्रेस के जो लीडर कार्यकर्ता हैं। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पहुंच चुके हैं विजय सम्मेलन में। आपका मोस्ट वेलकम, खुश आमदेद, स्वागतम। इसी के साथ साथ गुलदस्ता पेश करेंगे हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट जनाब अहमद साहब, हमारे मंत्री गुलाम रब्बानी साहब को थोड़ा जोरदार ताली। शुक्रिया। इसी के साथ आप लोग अपने अपने काम में भी लगेंगे, इसलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं दावत सुखन देना चाहूंगा आपके हमारे बीच जनाब जैनुल हक साहब को। आइए और अपनी बातों को रखिए। आज के विजय सम्मेलने उपस्थित हमारे ब्लॉक नेतृत्वेर जे नेतृत्व उपस्थित रয়েছেন সকল প্রধান, ব্লক অঞ্চল প্রেসিডেন্ট এবং আমাদের রাজ্যের মহিলা নেত্রী উপস্থিত রয়েছেন, আমাদের রাজ্যের ক্যাবিনেট মিনিস্টার गुलाम रब्बानी साहेब, शफीर रहमान साहेब, हमारे सकलेर जननेता डिस्ट्रिक्टर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री कन्हैयालाल अग्रवाल। समय खूब कम, आगामी दिन आबार आलोचना होबे। आज के जे प्रोग्राम सक्सेस हुए এই প্রোগ্রামকে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং মূল্যবান বক্তব্য আমাদের আরো দুজন বক্তা রয়েছেন, তিনজন, তাদের মুখ থেকে শুনবো। আগামী দিনে আরো আলোচনা হবে। আজকের এই প্রোগ্রামকে সফল করার জন্য সকলকে এই বিজয়ী সম্মেলনীতে যে সফল হয়েছে, আমরা যে উভয় মিলে এই বিজয়ী সম্মেলনী সফল করার জন্য अपनी बातों को रखने के लिए इसी के साथ साथ महिला स्टेट सेक्रेटरी मोहतरमा पंपा सरकार से मैं गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपनी बातों को रखें। কানাইলাল আগরওয়াল মহাশয় উপস্থিত আছেন, এখানে আছেন, সেটাই আমাদের দেখবার আছে। আগামী 26-এ আমাদের বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আমরা কিভাবে আমাদের দলের সংগঠনকে আরো মজবুত করব, বুথ স্তরের কর্মী থেকে শুরু করে অঞ্চল এবং ব্লকে যারা রয়েছে প্রত্যেকটা মামাটি মানুষের সরকারের যারা আজকে সকলকে যেভাবে সহযোগিতা করছি, আজকে আমরা উন্নয়নের নিরিখে যদি বিচার করে দেখি একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল কাজ করছে, বাকিরা সমালোচনা করছে। নিন্দুকেরা তো যাদের কাজ নেই, তাদের একমাত্রই মানুষের পরনিন্দা, পরচর্চা এবং সমালোচনা করাই একমাত্র কাজ। কিছু কিছু দল আছে, দেখবেন ভোটের সময় আসবে আপনার এবং আপনার আশেপাশে যে সমস্ত প্রতিবেশীরা রয়েছেন তাদেরকে নানা রকম কুমন্ত্রণা দিয়ে ভোটটাকে কিভাবে ডিভাইড করা যায়, কিভাবে অন্য জায়গায় তৃণমূল কংগ্রেস থেকে অন্য জায়গায় ভোটকে কিভাবে নিয়ে চলে যাওয়া যায়, সেই রকম কিছু আপনাদেরকে বলবেন। কিন্তু বন্ধুরা, আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে, ভোট আসবে, ভোট চলে যাবে। ভোটের পর আমাদেরকে তো বেঁচে থাকতে হবে। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান বিনা পয়সায় কে দিচ্ছে? মামাটি মানুষের সরকার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিচ্ছে। তাই যেই মানুষটা ফল দিচ্ছে সেই মানুষটার পরিচর্যা করুন, তাকে ভোট দিন। কারণ আমাদের কিন্তু বেঁচে থাকতে হবে, আমরা এখান থেকে চলে যাব না। আর এইখানে এই বিধানসভায় থেকে যারা কাজ করছেন তাদেরকে কাজে সহযোগিতা করুন। আপনাদের সহযোগিতা ছাড়া, আপনাদের একান্তভাবে সাহায্য ছাড়া কোনোদিনই আজকে আমরা এই মঞ্চে এসে পৌঁছতে পারতাম না। আজকে মঞ্চে দাঁড়িয়ে আমি এতগুলো কথা বলছি কাদের জন্য? আপনারা করে সোমেন মিত্রর সময় থেকে একটা যোগসাজশ রেগে চলেছিল সিপিএম এর সাথে, সেই হারমাতের দুর্গন্ধ এখনো যেমন কংগ্রেসের গায়ে লেগে রয়েছে। ওরা কিন্তু একাভাবে লড়াই করতে পারে না, দেখবেন জোটবদ্ধভাবে লড়াই করছে। তো আমি তাদেরকে ধিক্কার জানাই, কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটা মহিলা মুখ্যমন্ত্রী এবং এই মহিলা মুখ্যমন্ত্রী দেখিয়ে দিয়েছেন কিভাবে আজকে কন্যাশ্রী বিশ্বশ্রী হয়েছে এবং আগামী দিনে নোবেলও পেতে পারে। তো আমি বলবো, যেই মানুষটা কাজ করছে তাকে কাজ করতে দিন, সহযোগিতা করুন, আপনারা এগিয়ে আসুন। আপনারাই তো সেই মেরুদণ্ড, সেই হৃদস্পন্দন, সেই আস্থা, সেই আমাদের অক্সিজেন। আপনারা না থাকলে আমরা কোনোদিনই এতটা এগিয়ে আসতে পারতাম না। গোয়াল পুকুরের মাটি তৃণমূলের ঘাটি। তাই মুঝে লাখ বুরা চাহে তো क्या होता है,
मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूরে खुदा होता है। অনেকে আছে অনেক রকম ভাবে বিভেদ করার চেষ্টা করবেন, আপনারা এক থাকুন। ধর্ম যার যার, উৎসব সবার। দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে যে বা যারা বলেছিল উৎসবে নেই, আজকে লুকিয়ে তারাও উৎসবে ছিলেন। আজকে যেই ফুচকাওয়ালাটা, বেলুনওয়ালাটা থেকে শুরু করে, ঘুগনি বিক্রেতা থেকে শুরু করে, আজকে যারা দুর্গাপুজোকে সামনে রেখে প্যান্ডেলওয়ালা থেকে শুরু করে, ফুল বিক্রেতা থেকে শুরু করে, ছোট মাটির প্রদীপ যারা বিক্রি করে, তাদের যেমন রোজগার হয়, সেখানে কিন্তু ধর্ম দেখা হয় না, জাত দেখা হয় না। দুর্গা মায়ের প্রতিমা মাটি দিয়ে কে তৈরি করছে, সে হিন্দু না মুসলিম, সেটা দেখা হয় না। আজকে আমরা তাই বলবো, একমাত্র পশ্চিমবঙ্গে এটা চট্টগ্রাম আসেন, আমাদের অর্থনৈতিক চাঙ্গা হয়। তাই যারা ভেবেছিল, যে সমস্ত মাকুরা ভেবেছিল যে দুর্গাপুজোকে বন্ধ করে দিয়ে দ্রোহকাল করবে, তাদের মুখে জামা দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। আপনারা এগিয়ে আসুন, আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আপনাদের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। আমাদের রাজ্যের মন্ত্রী এখানে বসে রয়েছে, আপনাদেরকে আগামী দিনের দিশা দেখাবেন। 26-এর ভোটের জন্য আপনারা সবাই রেডি থাকবেন। জয় হিন্দ, জয় বাংলা, বন্দে মাতরম। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ, কানাইলাল আগরওয়াল জিন্দাবাদ, মন্ত্রী গোলাম রব্বানী জিন্দাবাদ। সর্বোপরি আমার সামনে যে সমস্ত প্রধান, উপপ্রধান, অঞ্চল, বুথ নেতৃত্ব, জেলা পরিষদ থেকে শুরু করে দূর দূরান্ত থেকে আগত সংঘের মহিলারা, অঞ্চল মহিলারা, আমাদের যে সমস্ত ভাইয়েরা, দাদারা যারা বসে রয়েছে, সকলকে জিন্দাবাদ। নমস্কার। बहुत बहुत शुक्रिया। सही बात है, जो आपके लिए सोचता है आपको भी उसके बारे में सोचना होगा कि जिसका मजहब उसका त्यौहार। हिंदुस्तान में कि ये ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का कॉल है कि जिसका मजहब उसका त्यौहार। लेकिन हम लोग तरह तरह के जो है घटनाएं देख रहे हैं जिसकी आइडियोलॉजी ना आपको पसंद है ना हमको पसंद है। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं दावत से सूचन दूंगा आपके हमारे हरदिल अजीज, हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट जनाब कन्हैया अग्रवाल साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपनी कीमती बातों को रखें। धन्यवाद रब्बानी साहब को। रब्बानी साहब जो संचालक है यहाँ के, अभी तो मंत्री साहब का नंबर अभी बाद में है, संचालक साहब को पहले धन्यवाद देना है। हमारे मंच पे गुलाम रब्बानी साहब हैं, मंत्री अब्दुल अजीज, हमारे कैबिनेट के मंत्री हैं वो, यहाँ सफीर साहब हैं, पंपा सरकार है, शबीना है, जैनुल साहब हैं, हमारे लाल भाई हैं, हमारे पुराने दिन के जमाल भाई हैं पीछे बैठे हुए हैं, वजीर साहब सब कोई है यहाँ पर, और आप लोग भी मेरे सामने बैठे। हमारे पार्टी के सर्वभारतीय सभानेत्री ममता बंदोपाध्याय और सर्वभारतीय संपादक श्री अभिषेक बंदोपाध्याय के कहने से पूरे राज्य के हर जिले में, जिले के हर ब्लॉक और शहर में ये विजया सम्मेलनी का प्रोग्राम हो रहा है। आज के इस दौर में इस तरह के प्रोग्राम की बहुत खासियत है। एक शेर है, 7 संदूकों में भर कर दफन कर दो नफरतें, 7 संदूकों में भर कर दफन कर दो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत बहुत है। यही मौका है हमें आपस में एक दूसरे के साथ साल भर अगर कोई रंजिश हुई भी हो तो इस मौके पर हम लोगों को मिल जाना है। आज देखिए केंद्र में एक सरकार आई है 2014 में, जिसका मकसद ही है बांटो और राज करो। अल्लामा इकबाल का एक शेर है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना रखना, हिंदी हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। कोई भी मजहब ये नहीं कहता जो आपस में बैर रखो, लेकिन 2014 में जो केंद्र में सरकार आई, आप लोगों को मालूम होगा 2014 के इलेक्शन के पहले जो भी टीवी का चैनल आप घुमाते थे, एक ही आवाज, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। कोई भी टीवी का चैनल घुमाइए, क्योंकि सब चैनल को ये मोदी जी के जो लोग थे वो खरीद चुके थे। अब की बार मोदी सरकार, और जब आए वो लोग इलेक्शन कैंपेन में मैदान में
तो कहने लगे 15 लाख रुपया देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे। अब तो हम लोगों को बोलने में भी शर्म आती है ये बातें, लेकिन बीजेपी वालों को सुनने में अभी भी शर्म नहीं। लेकिन जब पूछा गया, जब पार्लियामेंट में आ गई मोदी की सरकार, जब पूछा गया तो कहाँ गया भाई आपका वो 15 लाख रुपया का वादा, और कहाँ गई वो 2 करोड़ नौकरियां? बोलो तो 2014 चला गया जुमला में, और जैसे ही 2019 का फिर इलेक्शन आया, बोला वोट माने पुलवामा और बालाकोट। देखिएगा टीवी चैनल में खाली एक ही, वोट माने पुलवामा और बालाकोट। अरे वोट माने पुलवामा और बालाकोट नहीं था, वोट माने था 2014 में आप लोगों ने जो जो वादे किए थे, 2019 तक आप लोगों ने उन वादों को कहां तक पूरा किया। उस वक्त जो राज्यपाल थे उनका कहना था, वो जब रिटायर होके आए तो उन्होंने कहा कि मैंने उस वक्त की सरकार को कहा था कि 5 एरोप्लेन दे दो, हमको 5 एरोप्लेन दे दो, इस 5 एरोप्लेन से हम एक जगह से सैनिक को दूसरी जगह ले जाएंगे। लेकिन 5 एरोप्लेन नहीं दिया गया। एक आतंकवादी 2.5 कुंटल RDX लेके डूब जाता है उस कन्वॉय में, 40 सैनिक शहीद होते हैं, और उन 40 शहीदों की फोटो लगाते 2019 में फिर वही इलेक्शन जीता गया। और जैसे ही फिर 2024 का इलेक्शन आया, बोला इस बार मोदी जी इलेक्शन जीत जाएंगे राम मंदिर लेके। इलेक्शन में शुरू हो गया वही राम मंदिर का कैंपेन, लेकिन इस बार लोगों ने उनकी चालाकी पकड़ ली। इस बार और मोदी सरकार नहीं आई, इस बार आया NDA सरकार, NDA सरकार, जिसका एक तरफ है चंद्रबाबू नायडू आंध्रा के, और एक तरफ है बिहार के नीतीश कुमार। ये दोनों बैसाखी अगर हट जाए तो मोदी जी उलट के गिर जाएंगे वहीं पर। तो इस बार लोगों को समझ में आ गया, ये जो घृणा की जो राजनीति हो रही है, लोगों को बांटने की जो राजनीति हो रही है, ये राजनीति और बेसी दिन नहीं चलेगी। देखिए 2011 के पहले भी एक सरकार थी, बहुत से पुराने साथी है हमारे, 34 साल एक सरकार थी, 34 साल, 1977 से लेके 2011 तक, जब तक ममता बनर्जी सरकार लेके आई थी, 34 साल एक सरकार थी। और हमारी उम्र के जो भी यहाँ है उन लोगों को मैं यहाँ से मंच से कहता हूँ, एक भी प्रकल्प का नाम बता दे जो उस वक्त 34 साल में एक भी प्रकल्प किया हो, एक भी ऐसा काम किया हो जो लोगों से का फायदा होता हो। काम क्या हुआ करता था उस वक्त? खाली पार्टी मेंबर, वो पार्टी मेंबर हो गया, वो पार्टी मेंबर हो गया, और अगर पार्टी मेंबर हो गया तो मिट्टी में चलेगा ही नहीं, वो मिट्टी से 1 फुट ऊपर से चलेगा, तो उसको लोगों से क्या मतलब है। और जैसे ही 2011 में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी, 2013 में सबसे पहला काम किया था कन्याश्री, जो विश्वश्री हुआ। वर्ल्ड में 151 देश के प्रतिनिधि, जैसे आप लोग बैठे हुए हैं, सब कोई उसमें बैठे हुए थे, 151 देश के प्रतिनिधि बैठे हुए थे। सबसे ये पूछा गया था जो आप लोग अपने अपने देश में क्या क्या लोगों के लिए क्या क्या काम करते हैं। सब ने एक फहरिस्त दी, हम लोग ऐसे ये करते हैं। उस वक्त ये कन्याश्री प्रोग्राम प्रथम स्थान अधिकार किया था। हम लोग बोलते हैं कन्याश्री हो लो विश्वश्री, विश्व में 1 नंबर। गर्व की बात है हमारे लिए कि एक देश का एक राज्य पश्चिम बंगाल, इसका एक प्रकल्प विश्व में 1 नंबर होता है। उसके बाद देखिए लक्की भंडार कुछ दिन पहले दिया गया, लक्की भंडार स्वास्थ्य साथी प्रकल्प, कितना प्रकल्प ममता बंदोपाध्याय दिया। अपोजिशन वाले बोलते हैं क्या दीचे प्रकल्प की लावा लेते हैं, लेकिन सब प्रकल्प की सुविधा लेते हैं। कहीं ममता बंदोपाध्याय ने इसमें पार्टी की तो कोई बात रखी नहीं। कोई भी कोई पार्टी करे, सबको वो सुविधा मिलना चाहिए और सबको मिल रहा है। लेकिन थोड़ी सी दुख की बात है, 2024 में पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, बहुत उम्मीदें थी हमें ग्वालपुर से, क्योंकि 2021 में आप लोग बहुत वोटों से जिताए थे हमारे मंत्री साहब को, बहुत वोटों से जीते थे, वो रिकॉर्ड वोटों से जीते थे मंत्री साहब। जबकि उस वक्त उनकी शारीरिक हालत ऐसी की थी जो हॉस्पिटल में भर्ती थे कोरोना में, फिर भी आप लोगों ने बहुत वोट से जिताया। लेकिन इस बार जब पार्लियामेंट इलेक्शन आया तो हम लोगों की कहीं ना कोई कमी रह गई। देखिए वोट में जिताता है हम लोगों को बूथ कमेटी, हमारा बूथ जितना स्ट्रांग होगा, हम वहां कोई भी इलेक्शन आ जाए वहां उस बूथ में जीतेंगे ही। हम बूथ को स्ट्रांग करना हम लोगों का बहुत जरूरी है। कुछ अंचलों को अहमद राजा हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट साहब बता रहे थे जो
उन लोगों को बदली किया, ठीक है, जो भी पहले थे वो भी रहेंगे, जो उसको बदली किया वो रहेंगे, लेकिन बूथ को मजबूत करना होगा। अंचल ब्लॉक प्रेसिडेंट अगर ये समझे जो हमने अंचल प्रेसिडेंट कर दिया हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, खत्म नहीं होती। ब्लॉक प्रेसिडेंट की तो जिम्मेदारी शुरू होगी, अंचल प्रेसिडेंट बूथ कमेटी करेगा, लेकिन बूथ कमेटी करके बूथ कमेटी वाले बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं ये भी उनको ख्याल रखना होगा। अंचल कमेटी से कोऑर्डिनेट करके जो भाई तुम्हारा जो बूथ कमेटी है वो लोग महीने में बैठते हैं कि नहीं, और सिर्फ बूथ कमेटी बैठेंगे, बैठने से नहीं होगा। बूथ कमेटी में जो रिजोल्यूशन होगा, चाहे एक ट्यूबवेल का भी रिजोल्यूशन हो, तो बूथ कमेटी वाले जिसको देने बोलेंगे पंचायत उसी को दे। तब क्या होगा, बूथ कमेटी में लोग आएंगे, नहीं तो लोग समझेंगे बूथ कमेटी में जाके फायदा क्या भाई, बूथ कमेटी में हम लोग रिजोल्यूशन करते हैं उसमें तो कामयाब होता ही नहीं। इसीलिए यहाँ हमारे राजा भाई है, बहुत अच्छा ब्लॉक प्रेसिडेंट है, बहुत डायनेमिक है, जैसा सब कोई कह रहे थे। उससे कहूंगा हर बूथ कमेटी करके उस बूथ कमेटी का लिस्ट हमको दे कि ये बूथ में ये बूथ कमेटी है, एलोंग विथ उसका मोबाइल नंबर से। तो मैं किसी भी बूथ कमेटी में पहुंच जाऊंगा और अहमद राजा को कहूंगा भाई उस बूथ कमेटी का मीटिंग बुलाओ, मैं अमुक दिन वहां आ रहा हूँ। इस तरह अगर हम लोग संगठन को चंगा करेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले दिन में हम लोग यहाँ से फिर वही 2021 का विधानसभा रिजल्ट फिर यहाँ से वापस लेके आएंगे। ये आज हम लोगों को यहाँ से शपथ लेके आज इस प्रोग्राम से जाना है। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और सही बात कि अगरचे पौधे को मजबूत बनाना है तो जड़ में पानी अच्छी तरह से डालना है। तो बहुत अच्छे तरीके से हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट जनाब कन्हैया लाल अग्रवाल साहब बहुत अच्छे अंदाज में समझाए। आइए इसके साथ ही साथ आपके हमारे बीच फर्दिल अजीज आपके सामने कुछ बात रखेंगे। उससे पहले मैं एक जरूरी ऐलान करूंगा कि सर का स्पीच के बाद जो है आप लोगों को संबोधित करेंगे जो अंचल प्रेसिडेंट जो 2 सीनियर सिटीजन को साथ लेकर के आए हैं। तो मैं प्रोग्राम के आखिरी स्पीच रखेंगे आपके हमारे बीच MIC सर, रिस्पेक्टेड सर जनाब गुलाम रब्बानी साहब माइक पर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, प्रणाम, आदाब। हमारे साथ हमारे डाइस में हमारे जिला का अभिभावक, जिला प्रेसिडेंट, इस्लामपुर म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन श्री करण अग्रवाल साहब, हमारे राज्यों की नेत्री संपादिका पंपा सरकार, हमारे सीनियर लीडर सफीर रहमान साहब, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट अहमद रेजा, हमारे महिला ब्लॉक प्रेसिडेंट सबीना यास्मीन, हमारे आयुब यूनिट अभी ज्वाइन किए भाई गहलोत साहब, लाल भाई, साहब, जमात साहब, तकीब भाई और हमारे प्रधान लोग हैं आला बिट्टू, उसके बाद मामनी उसके बाद जो है बाबू और आप सभी हजरात जिनके लिए हम लोग आज प्रोग्राम खासतौर से जिनका नाम हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विजय सम्मेलनी के लिए हर जिला प्रेसिडेंट को, हर मिनिस्टर को, हर MLA को, हर MP को, चाहे राज्यसभा का हो या लोकसभा का हो, सारे लीडर्स को। ये बंगाल है, बंगाल में हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हजारों साल से हैं, लाखों साल एक साथ कैसे रह पाएंगे, उनके लिए ये बहुत सारा प्रोग्राम करती है ताकि पहले हम इंसान हैं, उसके बाद किसी भी मजहब के मानने वाले हैं। अगर हम किसी हिंदू माँ के पेट से जन्म होते तो फिर हम हिंदू होते। अभी आपका वही
क्या नाम है, नाम विमल विश्वास, अगर वो किसी मुस्लिम माँ के पेट से जन्म होती तो मुस्लिम होता। सवाल होता है पहले हम इंसान हैं और इंसानियत को बचा कर रखना पहले हमारा फर्ज होना चाहिए। उसके लिए ये जो प्रोग्राम होते रहते हैं, ईद मिलन, उसके बाद विजय सम्मेलन, कार्निवल, उसके बाद जो है दशमी आ जाता है, एक माँ दुर्गा पूजा 6-7 दिन ही होता है, तैयारी एक माह की चलती है। इस एक माह में हमने देखा कि कोई भी आदमी बैठा हुआ नहीं नजर आया। इस एक महीने में सारे लोग काम में लगे रहे। कोई जो है फुटका बेच रहे हैं, कोई फुटका खा रहे थे, कोई जो है आपका मेला घूम रहे थे, कोई मेला में जलेबी बेच रहा था, कोई मेला का जो है आनंद ले रहा था। इस तरह से हम लोग सब लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग मिलकर जो है हम लोग ये त्योहार, ये उत्सव, मजहब अपना अपना होता है लेकिन उत्सव जो है सबका होता है। इसका जो डाक देके चली है, इससे फायदा क्या हो रहा है हमने खुद देखा। कलकत्ता में हो, आपका मालदा में हो, मुर्शिदाबाद में हो, दार्जिलिंग में हो, हम लोगों का आपस में भाईचारगी, दोस्ताना ताल्लुकात, ये सारे जो है डेवलप हो जाता है। ये जो घृणा, ये जो नफरत, ये खत्म होते जा रही है बंगाल। इसलिए मैं आप सबों को एक ही तो रिक्वेस्ट करूंगा कि विजय सम्मेलन का इकोनॉमी को डेवलप करना मतलब हिंदुस्तान की इकोनॉमी में सहयोगिता करना, हेल्प करना। आज हमारी कमाई, हमारी फैमिली की कमाई, हमारे टोला की फैमिली कमाई, हमारे गांव की कमाई, हमारे गांव की कमाई, आपका बिहार हो, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, लेकिन बंगाल के दुर्गा पूजा को, इस पर्व को, इस उत्सव को हमारे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को ने दुर्गा पूजा को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी बताया। जिस तरह से भी हम बंगाल अगर हमारा मजबूत हो गया, हिंदुस्तान भी हमारा मजबूत हो जाएगा। लेकिन थोड़ी सी गलती हम लोगों की हुई थी। कब हुई थी? सारे हिंदुस्तान के लोग देख रहे थे किसको? हमारे मुख्यमंत्री को, ममता बनर्जी को। क्यों? अभी कनाडा बोल रहे थे 2021 की बात। वाकई में हमको न देख करके, हमको न सुन करके आप लोगों ने 74,000 वोट से हमको जिताया था। आपका कर्ज हमारे अगर 42 में 42 लेके आती है तो हम लोग मुख्यमंत्री को, बंगाल की ममता बनर्जी को हम लोग प्रधानमंत्री बना सकते हैं, बनाएंगे। अगर आज 7 हम लोग हार गए बंगाल से, चाहे वो अलीपुर द्वार की हो, चाहे वो जलपाईगुड़ी की हो, चाहे दार्जिलिंग की हो, चाहे वो लेकर के वोट नहीं मांगते हैं। राम मंदिर पर वोट नहीं मांगे, राम मंदिर के जगह में अयोध्या में एक भी सीट नहीं पाया। लेकिन सवाल होता है क्या धर्म की राजनीति हिंदुस्तान के लोग अब पसंद नहीं कर रहे हैं। वो लोग माइंड को डाइवर्ट करने के लिए क्या किया, कैलकुलेशन की राजनीति करते हैं। क्या कैलकुलेशन किया? हमारे बंगाल में मोदी रंजन चौधरी में तो मुर्शिदाबाद में हो गया। लेकिन सवाल होता है, आप लोग देखे थे राहुल गांधी को यहाँ कोई प्रोग्राम किया था? सोनिया गांधी यहाँ कोई प्रोग्राम की थी? नहीं की थी। कुछ लोग बीजेपी से पैसा लिए थे। क्यों डिमांड लिए थे? इस पैसा लेने की वजह से जिस तरह से एक साथ बैठे हुए हैं, कहा तेलंगाना में, यहाँ के लोग हमारे इनोसेंट होते हैं, यहाँ के लोग हमारे इमोशनल होते हैं, यहाँ के लोग सच्चे होते हैं, यहाँ के लोग जज्बाती होते हैं। हमारे जज्बात को, हमारे इमोशन को
हमारे सच्चाई को, हमारे ऑनेस्टी को किसी लात मार के तुमको गोलपोखर से निकालेंगे, यहाँ से धक्का मार के निकालेंगे कि तुमने बीजेपी से पैसा लिया था, इसलिए जो है यहाँ का वोट काट करके आज बीजेपी को जिताने में मदद किया। कभी सोचे हैं, कभी सुने हैं कि इलेक्शन के बाद भी पेमेंट होता है? इलेक्शन जीत गया, बाकी पैसा पे किसान से उठवाया। से खेले हो, जवाब देंगे तुम्हारे टाइम में। तुम आओ, चाहे चकलिया में हो, चाहे ग्वालपोखर में हो, चाहे इस्लामपुर में हो। इस्लामपुर में तो जवाब दे दिया कनाडा। इस्लामपुर में एक अंचल में, जो अंचल में सभी वोटों पाता, एक अंचल के लोगों को मैंने बुलाया तो बोला कि तो बहका रहा है, वो बोले जीत जाएगा। तो वो अगर 2.5 लाख से ज्यादा वोट पा दिया